this. Okay. And there is Q charge placed here at the corner. And you want to calculate flux from this shaded area. Find the flux from shaded area. That is the question. Okay. So you know that net flux is given by Q enclosed over epsilon naught. Correct? This is Gauss theorem. Gauss theorem. And how much charge is enclosed here is little bit tricky because this is at the corner. Okay, at the corner. This point charge is at the corner. But if I consider, if I just use little bit of our knowledge that if we put a solid at the corner, at the origin, like this is the origin. So if we take, if we consider only the region in which this point charge will come into the cube. So please see, if this is a solid, so this will be broken into 8 parts. And only 1/8 will be in the region x greater than 0, y greater than 0, and z greater than 0. That means inside this cube. So if I take this cube as x, y, and z, so our cube is in the region when all the three are positive, right? So when all the three are positive, that is only 1/8 of. अगर इसको एक solid ball मान लो, sphere मान लो, तो सिर्फ 1/8 पार्ट ही इनसाइड होगा. ये बात समझ आती है? Yes, sir. करेक्ट. सो अगर कोई बॉल है, उसको प्लेन्स के साथ कट कर दो, एक्स वाई जेड प्लेन्स, so what will happen? Only 1/8 part will come to this side. So actually our net flux will be q by 8 epsilon naught. Is it okay? Total flux. And because this charge is at the corner, ध्यान से देखना, this will be on this plane, the field will go at 90 degree on this plane. So because area is perpendicular to this and field will go at 90 degree with the area, so this and this area will not contribute to the flux. ये तीनों एरिया कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे. तो कौन कौन सा प्लेन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? ZX, ZY and XY. These plane will not contribute to the flux because theta will be 90 degree. तो जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो कौन कौन से हैं?
वो है ये सामने वाला, ये शेडेड वाला और ऊपर वाला, एंड ऑल थ्री, these three will be at exactly same location. They will be exactly at the same distance from the charge q, so all them will be equal. So I can write 3 into 5, because flux due to all of them will be equal to q by 8 epsilon naught. So flux shaded due to this will be q by 24 epsilon naught. अगर यही चार्ज बीच में होता तो फाई नेट कितना हो जाता? Q by epsilon. q by epsilon naught. और फाई शेडेड q by 8 epsilon naught. 6 Sorry, 6. 1 2 3 epsilon 6 epsilon naught. देखो समझ आ रहा है सबको? yes sir और सर इस थर्ड फेस बताइए सर, थर्ड फेस थर्ड फेस दो मतलब जो थर्ड वन कंट्रीब्यूट कर रहा है। 3 कंट्रीब्यूट जो नहीं कर रहे हैं, उनके अलावा 3 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो इसको टच कर रहा है जो फेस, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ओके सर। तो इसको कौन कौन सा टच कर रहा है? देखो मैंने यहाँ लिख दिया इसीलिए आपको, ताकि दिक्कत ना हो। ये देखो यहाँ पे सर वो सेकेंड एग्जांपल लिया है ना, क्यू नॉट बीच में, उसमें से कौन से फेज कंट्रीब्यूट करेंगे जरा बताएंगे? ओके उसमें क्या रीजन होगा कि कोई ना कंट्रीब्यूट करे, ये भी बता दो जरा कंचन। नहीं सर सही है। यहाँ पे नो कंट्रीब्यूट करने की वजह ये है कि जैसे मान लो ये वाला फेस है और ये चार्ज है, तो ये फील्ड ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है और फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स जीरो। सेम नहीं, परपेंडिकुलर। E और D है सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में होंगे तो मैक्सिमम होगा ना। वरुण कितनी उल्टी बात बोल रहे हो। ये डीए है और ये ई है, तो दोनों 90 पे है, तो इसलिए फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, so that's why it becomes 0. Yes. सर ये 6 एप्सिलॉन नोट जो आपने निकाला एक बार एक्सप्लेन कर दो। So phi net is this. Now every phase has same flux, so I can write, let me write it in a different way. Suppose this is the box and this is the charge. Suppose this area is A. Okay. Okay. हाँ जी सर। So field will be this side, this side, this side, this side, front wala this side, okay, back wala this side, like that. Field will go like that, and
with area vector every time it is making 0 degree angle, right? 0 degree, 0 degree for every face. Okay? ओके सर। प्रॉपरली दिख नहीं रहा। हम्म स्क्रीन अपने आप ब्राइट हो रही है तो प्रॉपरली दिख नहीं रहा। मुझे भी थोड़ा ब्राइट दिख रही, सबको दिख रही क्या ऐसे बहुत ज्यादा सर ब्राइट? आपकी स्क्रीन Yes, sir. सेंटर पे ब्राइट दिख रही है। जस्ट एक सेकंड। मुझे लगता है कई बार, हाँ देखो मेरे जैकेट से ही चमक रहा था। अभी सही हो गया। आपको ठंडी लगी है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, तो फाइन नेट इज हाउ मच? Q by epsilon naught. Is it okay? Total flux. ओके सर। Now total flux is how much? EA plus EA plus EA. कितने times? 6. 6 times. That is equal to Q by epsilon naught. So if you want only through this, so it is just EA. So EA will be equal to Q by 6 epsilon naught. It is okay now? हाँ जी सर ओके। सर एक बार वो चीज भी एक्सप्लेन फिर से कर दीजिए कि जब ये चार्ज कॉर्नर पे रखा हुआ होगा तो हम्म, उन 3 सरफेसेस का कंट्रीब्यूशन कैसे नहीं होगा? मतलब वो वो परपेंडिकुलर वाला नहीं समझ आया मुझे। मान लो ये है तुम्हारा एरिया और यहाँ रखा हुआ है, ठीक? हम्म तो इसका एरिया, अब ये तो आउटवर्ड। थोड़ा सा 3D हो हाँ जाता है ना, वो थोड़ा सा इमेजिनेशन भी जरूरत होती है। सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा जैसे क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है तो हम्म इसकी वजह से फील्ड तो हर डायरेक्शन में हर होगी। डायरेक्शन में करके देखो ना, कर ही नहीं पाओगे। मान लो ये एरिया है और हम्म यहाँ रखा हुआ है, हम्म तो फील्ड हर डायरेक्शन में करो, लेकिन इसका सरफेस तो ऐसा ही है ना। यस तो सर। जब तुम इसके सरफेस पे देखोगे तो हमेशा 90 डिग्री आएगा, चाहे हर डायरेक्शन में ही कर लो। अच्छा गॉट इट। और इसका एरिया वेक्टर इसके अंदर परपेंडिकुलर डाल दो, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। यस सर। समझे? यस सर। हम्म ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। ये समझ आया फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट? एंड Yes, sir. one thing more, with flux, like it was given E dot dA is equal to integral del dot E d tau. This is volume integral, this is surface integral. This is from vector, इसको कहते हैं गॉस थ्योरम। क्या कहते हैं? गॉस थ्योरम. This is used to convert surface integral into volume integrals. सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है? यस, हाँ जी सर। बट you have seen this is equal to Q enclosed over epsilon naught. Which is equal to 1 upon epsilon naught integral Q enclosed can be written as rho d tau as volume integral. Correct? So del dot E will be equal to rho by epsilon naught. This is differential form of Gauss theorem. First Maxwell's equation.
differential form of Gauss theorem, first Maxwell's equation. First Maxwell's equation. ठीक है? थोड़ा आप लोग अपना ब्राइटनेस भी कम कर लो ना, तो थोड़ा बेटर दिखेगा। मैंने अभी अपना कम किया है, थोड़ा बेटर दिख रहा है। ठीक है? यस सर। ठीक है सर। थोड़ा करना। अब ठीक है। अभी बढ़िया है सर, एकदम परफेक्ट। यस, तुम लोग बताया करो यार, बीच बीच में चीजें बेस्ट होनी चाहिए ना। कितना अच्छा दिख रहा है, देखो। दिस इज बेस्ट नाउ। और यार यस सर। ओके, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, ओके। एंड फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन भी इसको कहते हैं। वी कॉल इट फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो व्हेन let us do some more concepts. इरेज कर दूं ये? Right, suppose E in some given region is E in some given region is found to be E is equal to K R Q R cap. A, find volume charge density. B, find Q enclosed in a sphere of radius R. In a sphere of radius capital R. ठीक है? तो ध्यान से देखो, you want rho, write del dot E is equal to rho by epsilon naught. Yes? जो भी नया चीज मिलता जाए, मैंने आपको पेज छुड़वाया था, याद है? शुरू में ही you have left 2 pages, and whenever you learn some new formula you should just write it so that we can use it again and again. So this suppose we have a vector in a spherical polar coordinate, del dot a vector is there, so this is equal to 1 by r square
del by del r, r square ar. Ar is the radial component. Then we have theta component and phi component, which is not required because only radial component is there. Okay. I'm putting a sheet on your group and everybody will note down this on that page. This is simply from Griffith. You can मिल गया? Yes? Yes, sir. Okay, so let us do this. So from electric field, rho was required. So immediately we know that Gauss differential form क्या करता है? वो electric field को relate करता है rho से, और rho की ही जरूरत है. So rho will be equal to epsilon naught del dot E, right? So that is equal to epsilon naught 1 by r square del by del r square into k r cube. ठीक है? So this will become epsilon naught k by r square into, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 R की power 4. 4 and this will cancel, it will become r square. So it will become 5k epsilon naught r square. This is the charge density. ये वाला पार्ट मैंने क्यों नहीं यूज किया थीटा एंड फाई वाला? बिकॉज ये फंक्शन है ही नहीं थीटा और फाई का, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा. ओके तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, ये मैंने किस में लिखा है? डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पार्ट की जरूरत पड़ती है. मोस्ट ऑफ द टाइम ओनली दिस पार्ट इज रिक्वायर्ड. कोई दिक्कत यहां तक? एंड नाउ you have Q enclosed, which is integral Rho d2. rho d tau from 0 to r. So what is rho? 5k epsilon naught integral r square. What is here? D tau, small volume, 4 pi r square dr, right? When it is symmetric in theta and phi, small volume is given by this, so it will become 4 pi r square di from 0 to r. So क्या बन जाएगा? 20 k pi epsilon naught सर आपने ये जो रिलेशन लिखी है डेल डॉट टी इज इक्वल टू, सर ये आपने नीचे इसको रो को इक्वल कर दिया है, ये कैसे किया? कहाँ क्या इक्वल? सर डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, जो सेकंड आपने अप्लाई किया. हाँ जी. ये नीचे जो होता है ना डिनोमिनेटर में,
ये ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ आया या नहीं हाँ जी सर। शिवानी? अगर यहाँ पे कोई चीज डिनोमिनेटर में है तो इधर जाएगी तो कहाँ जाएगी? बोलो बोलो भाई। सर हो गया क्लियर, वो जस्ट कंफ्यूजन था थोड़ा। ओके, तो ये हो जाएगा 20 के पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आएगा? सर R5/5 R5/5 एंड 5 4 जा 20। तो चेक करो सेम आ रहा है? 4 by k Yes, Yes, sir. epsilon R4 R5 R to ठीक है, Yes, sir. सबको समझ आ रहा है? तो डिफरेंट प्रोफाइल्स। अब टफ क्वेश्चन क्या होता अगर ये फंक्शन ऑफ आर थीटा और फाई दे दिया जाता, राइट? तो मुझे पूरा डेल डॉट ही लिखना पड़ता। देखो एक बार जो मैंने मैसेज किया है आपको, सर स्फेरिकल में देखो डेल डॉट वी लिखा हुआ है ना, 3 टर्म्स है, अंडरलाइन भी है ना? ओके, मिला या नहीं भाई? यस सर। सर देख रहे हैं। ओके, सर हम्म हम्म जो आपने सेकंड लास्ट स्टेप लिखी ई एप्सिलॉन नॉट बाय के आर स्क्वायर इनटू 5 r टू द पावर 4 r कहाँ स्क्वायर और r टू द पावर 4 कहाँ से? कहाँ पे? सर रो इक्वल टू एप्सिलॉन, हाँ सर इसके वाली स्टेप। हम्म तो यहाँ पे क्या आएगा? r टू द पावर 5, सर उसका डेरिवेटिव क्या होगा? r टू द पावर, सर आपने एक एक्स्ट्रा r स्क्वायर भी लिखा हुआ है ना? सर अरे R यार स्क्वायर आएगा वहाँ 4k कैंसिल हुआ, R स्क्वायर है। ये इससे कैंसिल किया है ना, आर स्क्वायर से R4 को कैंसिल करके आर स्क्वायर लिखा है। ओके ओके सर। साथ साथ देखो ना, अब तुम आधे घंटे बाद देख रहे हो। Yes, Sri Lakshmi, tell me, are you understanding Yes, sir. everything? Yes, sir. Okay. So let us so now find the electric field inside and outside a sphere find the electric field inside and outside the outside of the sphere
that carries a charge density that carries a charge density rho is equal to Kr. K is positive. This is the charge density. ठीक है? Rho carries a charge density this. Rho is equal to Kr. So there is a sphere like this, and this sphere is of radius capital R, and it carries a charge density rho which is non-uniform. कैसी है ये? It is non-uniform. Non-uniform. All right? Yes, sir. So same Gauss theorem is to be applied. So let us take a point P here and make a Gaussian surface. This is at distance R. So let us calculate first of all R less than R. Now we don't need to make all those things, small area, electric field. We know, okay? We can just we can imagine it and do it. So if here is small area, you don't need to do it now. मैं बना दे रहा हूँ, but not required. So how you will write integral E dot dA is equal to integral rho d tau by epsilon naught from 0 to R. So from 0 to small r, correct? Because how much charge we need? This much charge. Charge contained in this much of sphere is needed. है ना? Yes, sir. So E into 4 pi r square is equal to integral rho कितना है? kr d tau कितना लेंगे? Because there is no sin theta, no phi, तो 4 pi r square dr ले लेंगे d tau को from 0 to r and by epsilon naught. So remember, वैसे d tau क्या है? r square sin theta d theta d phi dr. But if there is symmetry और sin theta और d phi का function नहीं है, तो sin theta का integral 2 देगा, d phi का integral 2 pi देगा. So it will become 4 pi r square and dr. ठीक है? देखो जरा. equal to kr square upon 4 epsilon naught. तो E कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? Yes, sir. सही से किया है? सबका आ रहा है? Yes, sir. This will become r cube, r to the power 4 by 4. हाँ ठीक है. So this is inside. And when you go outside, so यहाँ पे, this is the Gaussian surface, and it will become E into 4 pi r square. Now this is important to understand that this will become kr 4 pi r square dr
from 0 to capital R, because charge will be only up to capital R. उसके बाहर there is no charge. ठीक है? So what is situation here? Sir, is equal to K capital R fourth upon 4 epsilon naught R square. सभी लोग कैलकुलेट करो. equal to K capital R to the power 4 small r square epsilon naught Upon 4 epsilon naught r square small r. तो ग्राफ कैसा होगा फील्ड का? R तक R स्क्वायर की तरह बढ़ रहा है ना? r बढ़ेगा तो स्क्वायर वैल्यू तो और कम होती जाएगी. Increase like this up to R and then Increasing. so here it is proportional to R square and here it is decreasing like 1 by R square. ठीक है? Everybody understood? Erase कर दूं? Yes, sir. सर हम्म. ई वेक्टर का मान ये 2 एप्सिलॉन नॉट होगा ना नीचे. किसका? ई वेक्टर इक्वल टू के आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा सर यहाँ पर. यहाँ क्यों? दूसरी साइड इधर सर, इधर जो मान निकाला है हमने, नहीं ऊपर वाला सर, और इधर आपकी तरफ. अच्छा इधर कह रहे हो ये हाँ हाँ क्या होगा? 4 एप्सिलॉन नॉट है, वहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट होगा सर. क्यों? यहाँ पे R क्यूब आएगा. R क्यूब का इंटीग्रल R टू द पावर 4/4 होगा. वही 4 यहाँ लिखा हुआ है. सर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना. पहले ही कैंसिल कर दिया क्या इंटीग्रेट करने से? ठीक है सर, ठीक है. This is a common mistake. Don't cancel it before integration. यस सर. Integration 6. सर सर ये जो अभी भैया बोल रहे थे सर, ये चीज हर इंटीग्रेशन में एप्लीकेबल है ना? अरे भाई ये तो
ये तो उस टाइप की गलती है कि जैसे a प्लस बी बाई ए का a और a काट दो। बिकॉज समटाइम मेरे से ऐसी गलती होती कैलकुलेशन। तो फिर यही गलती कर रहे हो, समझ जाओ तुम ये गलती कर रहे हो। ओके सर। जितना अच्छा ये है बस उतना ही अच्छा वो भी है। ये डॉट प्रोडक्ट में सर इसीलिए नीचे नहीं जाएगा सर पहले। हम्म ये मतलब ई डॉट डॉट प्रोडक्ट में इसीलिए नीचे पहले नहीं जाएगा इंटीग्रेशन के। डॉट प्रोडक्ट समझा नहीं मैं। सर ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर जो सर जो कह रहे हाँ इंटीग्रेशन के पहले ये तो आर स्क्वायर नीचे ये नहीं तो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट नहीं, ये तो खत्म हो गया डॉट प्रोडक्ट जब तुमने थीटा 0 ले लिया। तो क्यों डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हो इसको? तो सर पहले ही इसको काटने में फिर क्या दिक्कत है सर? तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ सपोज आर स्क्वायर डी आर, मान लो ये लिखा हुआ है। यस सर। तो ये दोनों काटने की बात कर रहे हो ना? यस सर। तो इसके लिए आंख बंद कर लिए। ये क्या लिखा हुआ है बताओ? इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल इसके ऊपर ऑपरेटेड है, तो इसकी यस वैल्यू आर सर। स्क्वायर है ही नहीं। बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेटर इसकी वैल्यू है r³/3। ठीक है, यस। तो जब तुम इससे फ्री कर लोगे तब इसको काट सकते हो। ओके थैंक यू सर। छोटी मिस्टेक है ये बट हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell non-uniformly charged spherical shell। So basically इस टाइप की एक शेल है, और this is radius a and this is radius b। this side is filled, शेल है ना, this is empty and this is having a charge density rho is equal to k by r square। okay, we have to find out electric field for r less than a, for r greater than a less than b, and for r greater than b। this is where you want to find the electric field। ठीक है, so let us do it। so a part is field is 0 because if you draw a Gaussian surface here like this, no charge is enclosed। yes or no? Yes, sir. b part, you draw a Gaussian surface here because now you want field in this region। so how much integral E dot dA is equal to Q enclosed by epsilon naught? So integral E dot dA will be how much? E into 4 pi r square is equal to, into 4 pi r square होगा 1 by epsilon naught integral k by r square 4 pi r square dr from a to r।
this is the charge enclosed. क्योंकि charge will start from A, so this distance is A, and this distance is small r. So up to small r, that will be the charge enclosed. So it will become E into 4 pi r square is equal to 1 by epsilon naught. 4 pi से 4 pi cancel. E into r square is equal to k by epsilon naught. What is here? Cancel. dr का r हो जाएगा. It will be r minus a. So E will be k by epsilon naught 1 by r minus a by r square. और जैसे ही बाहर आओगे अब पूरा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा. This is the Gaussian surface. So E into 4 pi r square is equal to 1 by epsilon naught integral a to b rho d tau. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? E into 4 pi r square is equal to rho is how much? 1 by epsilon naught a to b. Rho is k by r square 4 pi r square dr. R square cancels, 4 pi cancels. So E is equal to कितना आएगा? K upon epsilon naught r square into b minus a. Into b minus a. It will be like this. So if you draw the field, first of all up to A it is 0, then A to B it will be increasing and then it will fall. This is the profile of electric field. Okay. ये फील्ड की प्रोफाइल हो गई. ठीक है.
समझ आ गया सबको? कैन आई रेज दिस? Yes, sir. एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? सर एक चीज समझ में नहीं आई। हम्म ये सर चार्ज है, हम्म चार्ज से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना? हम्म बोलो बोलो, बोलते रहो। जहाँ सर रेडियस ए है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लिया है, वहाँ पर चार्ज है। जहां रेडियस ए है वहां लिया है 0। हाँ मतलब रेडियस के अंदर ए रेडियस। तो ये है ना, जैसे ये, तो ये खाली जगह है, एम्प्टी शेल है ना, यहाँ चार्ज है। अब बताओ क्या क्वेश्चन है? एम्प्टी जगह में सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। एम्प्टी मतलब कुछ वहां है नहीं, जैसे एक एक सॉलिड बॉल है, उसके बीच से तुमने निकाल लिया, एक स्फेरिकल चीज निकाल लिया, तो उसी को तो शेल कहते हैं ना। यस सर। और अगर यही चीज बिल्कुल पतला हो जाए तो उसी को थिन शेल कहते हैं। तो तुम ऐसी शेल बनाते हो, ये थिन शेल है। बाहर की ओर भी नहीं होगा सर? है? क्या नहीं होगा? बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर। तो देखो क्या बनाया है अभी आपने, यहाँ फील्ड 0 है, यहाँ फील्ड है और यहाँ फील्ड है, वो तो निकाला ही अभी आपने गॉस थ्योरम से। ओके, मतलब जो सरफेस पे होगा, जितना जितना सरफेस पे होगा उतना ही भार होगा। भार का तो कोई बात ही नहीं, तो फील्ड की बात है यहाँ पे। ये तो चार्ज से रिलेटेड चीज है ना, इट इज नॉट रिलेटेड टू वेट। इलेक्ट्रिक फील्ड सर। हम्म तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय गॉस लॉ, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि गॉस लॉ से क्या निकल रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। सिस्टम को समझो। सिस्टम है कि एक स्फेयर है और उसके बीच में ये खाली जगह है, यहां कुछ नहीं है, एम्प्टी वैक्यूम है, यहां चार्ज भरा हुआ है। तो यहां फील्ड 0 है, यहां फील्ड है, यहां फील्ड है, एंड वी हैव कैलकुलेटेड इट। फील्ड इज 0 हेयर, फाइनाइट हेयर, फाइनाइट हेयर, इन दोनों जगह फील्ड है, यहां फील्ड नहीं है। क्लियर है सबको? चलो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन है, इस तरीके का एक सिलेंडर है, लॉन्ग है, ठीक है। लॉन्ग है तभी हम गॉस थ्योरम लगा पाएंगे। A long coaxial cable carries a uniform charge density rho on the inner cylinder. यहाँ पे एक अंदर सिलेंडर है और ये भरा हुआ है, सॉलिड है। चार्ज डेंसिटी इज रो। और बाहर ये बीच में एम्प्टी है, बाहर के सरफेस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। जस्ट दोनों पे चार्ज, अगर यहाँ चार्ज क्यू है तो बाहर टोटल चार्ज माइनस क्यू है, ऐसा लिखा हुआ है। अब इन तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। सो दिस इनर रेडियस इज ए and outer is B. So suppose this inner radius is A and the outer radius is B. So electric field R less than A
electric field R greater than A less than B, and electric field R greater than B. ये तीन है. ठीक है. क्वेश्चन समझ आया सबको? यस तो सबसे पहले R लेस देन ए पे देखते हैं, जिसमें रो चार्ज भरा हुआ है. सो अप्लाई द गॉस थ्योरम. इंटीग्रल E डॉट dA is equal to Q enclosed or epsilon naught. So you will have to take it like this. At a small distance R, make a Gaussian cylinder like this, like this, like this. Make a Gaussian cylinder like this. Then a small area here. Again, same things has to be done. And then direction of electric field and area, E and dA like this. All you have to do. So it will become E into 2 pi R L, if this is the length of the cylinder L. No contribution of the top surfaces we have done, because it will be at 90 degree, it will not contribute to the flux. So E into 2 pi RL, right, will be equal to 1 by epsilon naught integral rho d tau. And what is a small volume for cylinder? याद है किसी को? R dr R dr? d theta dz. No, not theta, phi, d phi dz. So it is rho, sorry. What are the coordinates? Rho R. pi dash z. Actually, rho लिखते हैं, but rho I am not using. Okay. Phi R z. phi z. This is the cylindrical coordinate, and this is the small cylindrical volume. अब ये note करते रहो, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, बार-बार use करना पड़ेगा. We have to use it again and again. Small volume for cylinder. Small volume for cylinder. R dr. So if you integrate this, you will get pi r square h, which is volume of the cylinder. Okay. ठीक है. तो ये हो जाएगा E into 2 pi RL is equal to 1 by epsilon naught integral rho into, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 to a. सर rho की कुछ वैल्यू नहीं है. What is the profile of rho? It is 0 to r. हाँ. So rho is constant. It will be 0 to r, and all this will give 2 pi. Phi will give 2 pi after integration, and z will give L. Okay. After integration. RDR will remain ना. ऐसे एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो कई बार समझ नहीं पाएंगे आप. It will be 1 by epsilon naught integral 0 to r rho
So rdr into integral 0 to 2 pi d phi into integral 0 to L dz. It is actually like this. तो ये बन जाएगा E into 2 pi R L is equal to rho by epsilon naught. ये क्या बन जाएगा? What it will become? R square by 2 into 2 pi into L. L and L cancel. 2 pi cancel. R cancel. So what we will get? Rho r by 2 epsilon naught. Is equal to rho r by 2 epsilon naught. In cylinder what we got? Rho r by 3 epsilon naught, right? Cylinder का कितना होता था अंदर? Rho r by 3 epsilon naught. Please check. वही था अंदर। अंदर तो 2 ही आ रहा था, rho r by 2 epsilon, स्फीयर में 3 epsilon naught। स्फीयर की बात कर रहा हूँ। स्फीयर में 3 epsilon naught होता है, सिलेंडर में 2 epsilon naught। So ये समझ आ गया सबको? See this? Everybody understood? सर ये खोखला सिलेंडर है सर? खुद सोचो कि जब यहाँ रो लिखा हुआ है तो खोखला हो सकता है? नहीं सर। कैसा है? ये सॉलिड है, ये जगह एम्प्टी है, इसलिए ये सिर्फ बाहर वाला सिर्फ एक शेल है। ओके, अब अंदर निकाले। तो अब हम यहां आ जाएंगे, कहीं यहां। तो क्या होगा? मतलब ये वाला 0 क्यों 0? पूरा अंदर एम्प्टी स्पेस है ना। तो एम्प्टी स्पेस है। जब गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर तो पूरा ही सिलेंडर आ जाएगा। ये एम्प्टी स्पेस है, इसको जब यहाँ पे जब गॉसियन सिलेंडर डालोगे नॉन जीरो आएगा बीच में ही तो है। पूरा ही अंदर आ जाएगा। तो इंटीग्रल E डॉट dA is 1 by epsilon naught इंटीग्रल 0 to A आ जाएगा पूरा सिलेंडर। रो बताओ भाई। RDR अब समझ रहे हो ना? 2 पाई इंटू L। ओके, अब नहीं लिख रहा हूं। So this will become E into 2 pi RL is equal to 1 by epsilon naught to rho into 2 pi into A square by 2 into L. L and L, 2 pi and 2 pi. So E will be rho A square by 2 epsilon naught R. This is the field profile outside. और जैसे ही तुम यहां आओगे बाहर गॉसियन सरफेस बनाओगे तो ये बाहर वाली शीट का भी चार्ज आ जाएगा और वो दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। तो इसलिए यहां पे फील्ड क्या हो जाएगी? 0। समझ आया? यस सर। इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन कि जितना चार्ज इस सॉलिड वाले सिलेंडर में है उतना ही बाहर की शीट पे है। मैंने लिखा भी था -Q and Q। So that's why when Gaussian surface will enclose total complete cylinder, then net charge will be 0. So electric field will be 0. Nice question, no? यस।
तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इनसाइड प्रोफाइल कैसी थी प्रोपोर्शनलिटी में? इनसाइड वाली क्या आया था? R के प्रोपोर्शनल है। Rho R by 2 E proportional to R. प्रोपोर्शनल टू आर है ना? Yes, sir. Yes, sir. So it was proportional to R, then it went like 1 by R, then 0. So this is E, this is 0, this much is A, this much is B, and beyond B it is 0. Okay? समझ आ रहा है भाई सबको? Revise the problem again, everybody. Are you understanding? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay? चलो फिर रिवाइज करना अच्छे से, थोड़ा आराम आराम से करा रहा हूं मैं, ताकि किसी को कोई डाउट पूछना है या समझ आ रहा है अच्छे से? बताओ। बोलिए भाई। सर एक डाउट है। हाँ बताओ साहिल। सर ये आपने पिछले क्वेश्चन में लिमिट ली थी नहीं सी पार्ट में, हाँ उसमें सर आपने ए से बी ली थी लिमिट, लेकिन फील्ड तो आउटसाइड भी है उसमें, तो ए टू आर नहीं होगी। क्योंकि चार्ज तो भाई जैसे तुम्हारे पास कोई सिलेंडर है और तुम उसमें चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो, तो चार्ज बाहर नहीं है ना। ओके सर, ओके। ठीक है, चार्ज तो ए से बी में, फील्ड भले बाहर है, इसीलिए तो लेफ्ट साइड में स्मॉल आर लिया है, बट राइट साइड में लिमिट ए से बी लिया है। ओके सर। क्योंकि बी के बाद तो चार्ज है ही नहीं। यस सर। सर हमने जो स्पीयर का किया था ना, इनसाइड एंड आउटसाइड स्पीयर, वहां अगर यूनिफॉर्म ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उस केस में रो इनटू डीटो, और डीटो के प्लेस में हम जो वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर लेंगे ना, अगर यूनिफॉर्म होगा तो मींस 4/3। किसके लिए बोल रहे हो? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ स्पीयर, इसके पहले हमने जो स्पीयर के लिए तो किया था चार्ज ना, इनक्लोज की बात कर रहे हो ना? वहाँ चार्ज इंक्लूड। तो ये रो इनटू योर वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, हाँ। ये तो एप्पल वाला क्वेश्चन है कि 60 रुपए के 10 एप्पल मिलते हैं, तो 1 रुपए का कितना एप्पल मिलेगा, तो 20 रुपए का कितना एप्पल मिलेगा। ओके, हाँ, दैट इज गॉसियन सरफेस, which is called unitary method. Okay. चलो, okay then, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।